Hello students, we are continuing MCQ on a case scenario. So this case scenario is based on a risk analysis of a capital budgeting. So let us see data given. So we are given EC Limited is considering a new project with initial investment. It is estimated that IRR of the project is 16%, having an estimated life of 5 years. The finance manager has studied project sensitivity and informs that annual fixed cost sensitivity is 7.8416%, whereas cost of capital discount rate sensitivity is 60%. Other information of the project is as below. Profit volume ratio is given 70%. Variable cost is rupees 60 per unit. Annual cash inflow is given 57,500. And we have to ignore taxes. Then we have to calculate initial investment of a project, calculate discount rate which is required rate of a project. Then we have to calculate NPV of the project. तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज ऑन रिवर्स बेसिस है। तो लेकर से डाटा जो आपको मेंशन किया है प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले आपको आईआरआर दिया है, लाइफ दी है प्रोजेक्ट की, आपको कैश इनफ्लो दिया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपको मेंशन किया है, वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास। तो लेकर से तो डाटा गिवन इज नंबर 1 आईआरआर ऑफ अ प्रोजेक्ट, दिस इज गिवन 16%। देन लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट which is number of years, this is given 5 years, which is denoted as n. So again we are given profit volume ratio, PV ratio is given, this is 70%. PV ratio होती है percentage of contribution to sale. तो variable cost is also given, variable cost per unit, ये आपको मेंशन किए हैं ₹60 per unit. Then cash inflow is given, this is per annum in rupees. So this is given to be our 57,500. And we have to ignore taxes. It means कोई taxes आपके नहीं है, no taxes. फिर आपको sensitivity mention की है, that sensitivity of fixed cost is given. So first of all you are given sensitivity of fixed cost. This is given to be our 7.8416. 7.8416%. तो सेंसिटिविटी शो करके कितना चेंज होना चाहिए फिक्स कॉस्ट में, सो दैट एनपीवी बिकम्स 0. देन सेंसिटिविटी ऑफ डिस्काउंट रेट इज आल्सो गिवन 60%. और एक आपको मेंशन की है सेंसिटिविटी ऑफ डिस्काउंट रेट, which is also called required return, that is 60%. It means what is the change in discount rate so that NPV becomes 0. तो अब देखते हैं आपके जो डिफरेंट MCQ हैं. नंबर 1 ये है टू कैलकुलेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. तो नंबर 1 MCQ, तो वी हैव टू कैलकुलेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट विच इज आल्सो डिनोटेड एज I0. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको IRR मेंशन किए हैं. सो वी नो दैट एट IRR so NPV of a project is equal to 0. Because IRR is that rate of return at which present value of a cash inflow becomes equal to initial investment. तो इट मीन्स यदि आपके पास IRR है, उसके बेस पर आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए कैश इनफ्लो की, और वही आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी. तो इट मीन्स व्हाट इज अवर आंसर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट IRR. कैश इनफ्लो देखो आपको मेंशन किए हैं, ये आपके सेम है 57,500 एवरी ईयर की सेम, तो ये एनुटी बन जाएगी. मल्टीप्लाई कीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी. IRR आपको मेंशन किया है 16%, लाइफ आपको दी है 5 ईयर, तो दिस इज 57,500. So let us see how much is this factor at 16% for 5 years. So this factor is coming 3.2743. So this will be total investment 57,500 into 3.2743. So this is coming to be rupees 188. So 272. So now you can say which option is correct. Answer is option number C is correct. Initial investment is 188,272.
तो ये मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रही है 188,272. Then we have a second MCQ. We have to calculate discount rate required return of the project. तो अब आपको कैलकुलेट करने हैं व्हाट इज एवरेज डिस्काउंट रेट ऑफ अ प्रोजेक्ट. इट मीन IRR आपको दिया है बट हमें डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करने हैं विच इज आर रिक्वायर्ड रिटर्न. ये मिसिंग है. तो रिक्वायर्ड रिटर्न होती है जिसके बेस पर हम NPV कैलकुलेट करते हैं. बट अब आपको देखो डिस्काउंट रेट की जो है सेंसिटिविटी मेंशन की है. तो सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या होता है? सेंसिटिविटी ऑफ डिस्काउंट रेट, लेट अस से आर डिस्काउंट रेट. इट मीन्स व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन डिस्काउंट रेट सो दैट NPV बिकम्स जीरो. और अभी आपको पता ही है कि NPV जीरो होती है IRR के बेस पर. IRR है तो इट मीन्स जो आपका डिस्काउंट रेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 16% टू मेक NPV जीरो. बाकी जो एक्चुअल डिस्काउंट रेट है जिसके बेस पर आपकी NPV पॉजिटिव या नेगेटिव है दैट इज अवर आर, वो मिसिंग है. तो मीन्स अब सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होता है आपका? तो आपको चाहिए होता है डिजायर्ड डिस्काउंट रेट डिजायर्ड आर. सो एट विच NPV जीरो, जिसके बेस पर आपकी NPV जीरो है, माइनस एक्चुअल डिस्काउंट रेट आपका कितना है अपॉन एक्चुअल डिस्काउंट रेट, सो टाइम्स 100. ये आपकी आ जाएगी सेंसिटिविटी ऑफ डिस्काउंट रेट. एंड व्हाट इज डिजायर्ड आर एट विच NPV जीरो, दिस इज IRR. इट इज गिवन 16%. तो पुट करते हैं वैल्यू 16 माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न मिसिंग है आपकी इंटू 100 एंड दिस सेंसिटिविटी ऑफ डिस्काउंट रेट इज 60%. तो उसको आप सोल्व कीजिए तो उससे आपके आर की वैल्यू आ जाएगी. 100 विल गो हेयर 0.6 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस इज 16 माइनस आर इज इक्वल टू 0.6 आर. so r will go here, so this is 1.6 r is equal to 16. so therefore r is equal to 16 divided by 1.6, so this is coming 10%. तो आपका आंसर आ रहा है कि ओरिजिनल डिस्काउंट रेट है आपका 10%. so you can see which option is correct. so option B is correct. so answer is option B. तो ये भी मेंशन कर रहे थे कि जो आपका डिस्काउंट रेट है ओरिजिनल आर, तो दिस इज कमिंग 10%. नेक्स्ट वी हैव थर्ड MCQ. वी हैव टू कैलकुलेट NPV ऑफ द प्रोजेक्ट. so now this is quite simple. what is NPV of project? so this is your present value of cash inflow at required return minus initial investment. तो आपके पास देखो कैश इनफ्लोस हैं 57,500. अब आपकी जो रिक्वायर्ड रिटर्न है सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड 10%. सो यू टेक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर NP एट 10% फॉर 5 ईयर माइनस इन्वेस्टमेंट है आपकी 188,272. दिस इज इक्वल टू नाउ 57,500. सो अवर NP फैक्टर एट 10% फॉर 5 ईयर इज 3.791 minus 188,272. so this will be our NPV 57,500 into 3.791 minus 188,272. so this is coming rupees 297,105 point, or let us take 297 round to correct 297,11. so let us see which option is correct. answer is option number B. so option B is correct. so next we have a fourth MCQ. we have to calculate annual fixed cost of the project. so let us say what is our annual fixed cost of a project. अब उसके लिए देखो आपको सेंसिटिविटी दी है ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट की. तो उसका फार्मूला क्या है आपका सेंसिटिविटी का? सेंसिटिविटी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज इक्वल टू चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट upon original FC into 100. so this change is 7.8416%. तो इट मीन्स अब NP आपको जीरो बनानी है तो फिक्स कॉस्ट हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी. बिकॉज जब फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी कैश इनफ्लो आपका रिड्यूस हो जाएगा. तो इट मीन्स अब जो NPV आपकी पॉजिटिव आ रही है उसको आपने जीरो बनाना है. तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी जिससे कैश इनफ्लो रिड्यूस होगा. यदि आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें
present value of increase in fixed cost that is equal to how much is our NPV। ओके, ये एनपीवी आपने जीरो बनानी है, तो जितना चेंज आ रहा है उतनी ही आप फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो फार्मूला बन जाएगा अब आपका प्रेजेंट वैल्यू, आपके फार्मूला होगा चेंज इन एफसी मिसिंग है, पीवी फैक्टर आ जाएगा आपका 10% फॉर 5 ईयर जिसे 3.79, और एनपीवी आपने कैलकुलेट की थी तो जिस मन आ गए 29,711, तो उसको अप्लाई करके आपका चेंज आ जाएगा फिक्स कॉस्ट में, जिसे 29,711 divided by 3.79। So let us see how much is change in fixed cost. 29,711 divided by 3.79. So this amount will come in 7839.3। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राउंडेड फिगर करके 314। अब आप इसमें पुट कीजिए फार्मूले में, चेंज है तो ओरिजिनल एफसी निकल जाएगा जिसे 7839.314 अपॉन ओरिजिनल एफसी इंटू 100, 7.8416। So our original FC is 7839.314 upon 7.8416%. So this is 7839.314 divided by 7.8416%. So this is coming रुपीज 99,971। तो ये आपकी आ जाएगी प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट। Then we have MCQ number 5. In this case, we have to calculate marginal safety units of the project. तो आपको marginal safety के units कैलकुलेट करने हैं for the project. So this is also दिखाना है जो marginal safety in a units। इससे देखो एक डाटा बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं अपनी। तो आपके पास देखो पीवी रेशो है, वेरिएबल कॉस्ट है, सो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जिसे कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका 70% ऑफ सेल, इट मीन वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी 30%। अब वेरिएबल कॉस्ट आपको दी है 60, तो 60 को डिवाइड कीजिए 30% से, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा गेट इट कमिंग 200। इट मीन कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका 140 पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है अपनी टोटल, तो जिसमें नहीं है 99,971। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वट इज अवर, तो आपके पास कैश इनफ्लो है टोटल, तो अब आपका कैश इनफ्लो का फार्मूला क्या है, सेल्स होगी आपकी माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। कोई टैक्सिंग नहीं है तो उसका कोई डेप्रिशिएशन माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पर कोई टैक्सिंग, आपको टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी, तो ये बन जाएगा कैश इनफ्लो। अब सेल कैसे निकलेगी, आपकी क्वांटिटी कितनी है वो मिसिंग है, लेकिन से क्वांटिटी है आपकी क्यू, तो टोटल सेल आ जाएगी 200 की क्यू, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 60 क्यू, इसमें कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 140 क्यू, माइनस कर लीजिए फिक्स कॉस्ट 99, तो 971, तो बैलेंस इज अवर कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो आपको दिया है 57,500। तो इट मीन्स पहले आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट आर टोटल सेल यूनिट्स, तो टोटल सेल के कितने यूनिट्स हैं आपके। तो जिस इक्वल टू 140 क्यू, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, ये फिक्स कॉस्ट है आपकी। So total contribution is 140 Q minus fixed cost 99, so 971 is equal to 57,500। तो इससे आपके टोटल सेल के यूनिट्स आ जाएंगे Q, तो दिस विल बी 57,500 प्लस 99,971 डिवाइडेड बाय 140, तो दिस इज कमिंग 1125 यूनिट्स। अब मार्जिन सेफ्टी होती है, इसमें से माइनस कर दो आप ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के जो यूनिट्स हैं उसका फार्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन है अब आपका 140, तो किसी की 99,971 अपॉन 140, तो लेके से हाउ मच इज ब्रेक इवन पॉइंट 99,971 डिवाइडेड बाय 140, तो किसी कमिंग 714 यूनिट्स। तो बैलेंस आपकी आ जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स आ जाएंगे। तो दिस इज कमिंग 411 यूनिट्स हैं आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यू कैन से विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
So in this lecture we discuss case scenario based on the risk analysis of capital investing and major topic was sensitivity analysis. Further topics we will continue in next lectures. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।